کسی بچے کے ساتھ، کسی یتیم کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت ستایا جا رہا ہے، بہت پریشان کیا جا رہا ہے نا؟ تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، اسے انصاف دلانا ہے، اس کے حق میں آواز اٹھانا ہے نا؟ اس کا حق دلانا ہے اگر اس کی حق تلفی ہو رہی ہے نا؟ یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو انسان اس قدر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی وہ خودکشی پر مجبور ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز سے لوگوں کو بچانا ہے، ہلاکت سے بچانا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی آیا نا کہ جس نے کسی کو زندگی دی تو اس نے گویا سارے انسانوں کو زندگی دی، اور اگر جس نے کسی انسان کا قتل کر دیا تو اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہے نا؟ تو اس آیت کی روشنی میں ضرورت ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم خود بھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و زیادتی نہ کریں، اور اگر کہیں پر ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اس سے بچائیں ہم ظلم و زیادتی سے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ایسا کرے گا زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے، آگ میں جلا دیں گے ہم اسے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ سوسائڈ کرنا، ناحق ناجائز باطل مال کھانا اور مجبور کرنا لوگوں کو، ظلم و زیادتی کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ انجام بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ کرنا اللہ پر آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس نے آگ تیار کر رکھی ہے، اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے، تو لہٰذا ڈرنا چاہیے، پناہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی حفاظت فرمانا، ان تمام ایسے کاموں سے ہمیں بچانا جو ہمیں کیا کریں؟ جہنم رسید کریں۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم آیت نمبر 31۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم اجتناب کرو گے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تم سے تمہاری سیئات جھاڑ دیں گے اور ہم تمہیں داخل کریں گے داخل ہونے کی جگہ باعزت۔ کہا جا رہا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے گناہوں کو جھاڑ دیں گے۔ اب ہمیں اس آیت کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبائر کیا ہوتے ہیں، بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ بڑے گناہوں کی تفصیل احادیث کی روشنی میں ہم سب کے سامنے آتی رہتی ہے، آپ بھی ہزاروں بار شاید پڑھ چکی ہوں گی، ہے نا؟ بڑے گناہوں کے تعلق سے چند ایک کا ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے۔ ابھی یہ بات آئی تھی نا کہ جو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، حق تلفی کرے گا، حق مارے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ کبائر کا ذکر آیا ہے نا؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کبائر میں ظلم عظیم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ قرآن میں خود کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک ناقابل قبول، ناقابل معافی، کیا ہے؟ جرم ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے شرک۔ تو شرک سے ہمیں حد درجہ بیزاری کا اظہار کرنا ہے، حد درجہ نفرت کا اظہار کرنا ہے نا؟ آخری حد تک کیا کرنا ہے؟ بچنے کی ضرورت ہے۔ شرک کرنا تو بہت دور کی بات، اس بارے میں کبھی سوچنا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ شرک کا ہم سے ارتکاب ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شرک کے بعد بہت سارے گناہ ہیں جو بڑے گناہوں میں شامل ہیں، ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر قتل کر دینا، اور خصوصی طور پر ناحق قتل کرنا، ہے نا؟ یعنی حق سے قتل کرنا تو یہ کہ انسان جہاد میں ہے، جہاد ہو رہا ہے نا؟ تلوار اٹھا رہا ہے، مار رہا ہے نا؟ تو یہ تو کیا ہے؟ حق کی راہ میں ہے۔ یہ ناحق یہ ہے کہ بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے، اور بلکہ قصور و غلطی تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کسی کو قتل کرنا، تو کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، یہ منع کیا گیا ہے کہ نہ اپنے آپ کو قتل کرو، نہ کسی اور کو قتل کرو۔
अभी मैंने आपको आयत बताई भी कि जिसने किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया तो उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। तो बहरहाल कत्ल भी क्या है? गुनाह कबीरा में से ही है। और फिर इसके अलावा गुनाह कबीरा में और क्या है? अपनी औलाद का कत्ल कर देना, अपनी औलाद को मार देना, मुफलिसी के डर से, गरीबी के डर से, तंगदस्ती के डर से, है ना? इस डर से कि वो हमारे साथ खाने में शरीक होंगे। तो ये क्या है? ये चीज़ पहले भी बहुत राइज थी कि बच्चों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन्हें कत्ल कर दिया जाता था, औलाद को मार दिया जाता था। आज भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की जहालत पाई जाती है ना? जहाँ पर लड़कियों की पैदाइश पर लड़कियों को मारा जा रहा है ना? या फिर माँ को मारा-पीटा जा रहा है बच्चे की पैदाइश पर। या कहीं पर जो है इस तरह के अंधविश्वास पाया जाता है कि बलि चढ़ा दी जाती है बच्चियों की, है ना? इस तरह के भी वाक़यात सामने आते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वाक़यात सामने आते हैं वो क्या है कि बच्चियों के दुनिया में आने से पहले ही उन्हें क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, अबॉर्शन कराया जाता है ना? तो ये क्या है? ये भी गुनाह कबीरा में से ही है ना? और गुनाह कबीरा में झूठी गवाही देना, हुँ? झूठ बोलना ये भी गुनाह कबीरा में से है। किसी पर तोहमत लगाना, ख़ुसूसी तौर पर, है ना? वो जो शरीफ और भोली-भाली यानी जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया हो और उन पर क्या करना? तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, बदकारी और ज़िना की, है ना? ये भी गुनाह कबीरा में से है। यानी किसी की इज़्ज़त ख़राब कर देना, किसी की इज़्ज़त पर हमला करना। और गुनाह कबीरा की इतनी लंबी लिस्ट है ना? कि कहाँ तक गिनाया जाए इन्हें। और ज़रूरत इस बात की है कि हम वक़्तन-फ़वक़्तन हम एक तो ये कि हम ऐसी किताबों का मुताला करें। ख़ुसूसी तौर पर मैं चाहूँगी कि वो किताब हम ज़रूर पढ़ें जिसमें गुनाह कबीरा बड़ी तफ़सील के साथ बताए गए हैं कि क्या-क्या गुनाह कबीरा होते हैं। असल में बात ये है कि हमने आज गुनाहों को बहुत छोटा समझ लिया है कि तो छोटा-सा गुनाह है। ये तो छोटी-सी गलती हम छोटी-सी बात कहकर हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, है ना? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी जो मैं आपको कई बार हदीस बता चुकी हूँ कि किसी भी चीज़ को हम छोटा स सम ना समझें कि छोटी-सी बात है। तो यही चीज़ें क्या होंगी, एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। यानी इंसान के अंदर जो बड़े-बड़े गुनाह जो आते हैं ना, वो कैसे पैदा होते हैं? छोटी सी शुरुआत होती है। यानी इंसान जो एक बहुत बड़ा डाकू जो बन जाता है, वो किससे एक छोटी-सी चीज़ किसी की ले ली उसने, है ना? और फिर उसकी आदत पुख्ता होती चली जाती है। शराब की जो आदत पड़ती है वो कहाँ से कि उसने एक बार कभी कहीं किसी मज़े में, मज़ाक में, मस्ती में, है ना? उसने क्या करे, खेल-खेल में कह लीजिए, है ना? और फिर क्या हो जाती है, उसने उसे पिया और फिर क्या उसकी लत पड़ जाती है उसे। तो ये बड़े-बड़े गुनाहों का जो आदी बनता है इंसान, उसकी शुरुआत जो होती है, उसका आगाज़ जो होता है, वो छोटी ही चीज़ से होता है ना? यानी जैसे ज़िना है, ज़िना इंसान उसके करीब कब जाता है? जब वो छोटे-छोटे इस तरह की हरकतें करे, है ना? शुरुआत छोटे से करे, गंदी फ़ोटो देख लेना, पिक्चर देखना, है ना? या वीडियोज़ इस तरह की देख लेना या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, है ना? जो इंसान को क्या करती हैं, ज़िना के करीब लेकर जाती हैं, फ़ाहिश चीज़ें, है ना? बेपर्दगी है, बेहयाई है, बेगैरती की बातें हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान को ज़िना के करीब लेकर जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को हम छोटा ना समझें, है ना? तो बड़े गुनाह इंसान जो आदी बनता है, उसका आगाज़ जो होता है, वो छोटे गुनाहों से होता है, इसलिए इंसान को छोटे गुनाहों से इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि उसकी आदतें पुख्ता ना हो जाएँ, उसको उसके अंदर से गुनाहों का एहसास खत्म ना हो जाए। तो बहरहाल ये है कि कोशिश हमारी होना चाहिए कि इंसान क्या करे ख़ुसूसी तौर पर इंसान को बहुत ज़्यादा इज्तनाब करने की ज़रूरत है, बहुत बचने की ज़रूरत है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए। और मेरे ख़्याल से अगर हम गुनाह को छोटे ही गुनाह को बड़ा समझकर अगर हम उससे इज्तनाब करें, है ना? तो इंसान बहुत हद तक गुनाहों से बच सकता है, बहुत हद तक बड़े गुनाहों से बच सकता है। तो किसी गुनाह को मामूली और हक़ीर नहीं समझना, उसे बड़ा ही समझना है कि हमें उसका इज्तनाब नहीं करना है ना? ताकि आगे चलकर फिर हम कबाइर का कबाइर के मुर्तकिब ना हों। तो बहरहाल मना किया जा रहा है
कबाइर से इज्तनाब करोगे, बचोगे, जिससे तुम्हें मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला ने मना किया है हमें, रोका है। और ये कहा गया है कि जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जाए वो करो और जिस बात से तुम्हें रोका जाए उससे रुक जाओ। हुँ? इस तरह की अहादीस हमारे सामने आती रहती हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा है कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी ज़िंदगी मेरी लाई हुई तालीमात के मुताबिक ना हो जाए, मेरी लाई हुई शरीयत के मुताबिक ना हो जाए। तो हमारी ज़िंदगी क्या होना चाहिए? अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे होना चाहिए। इसमें हमारी मर्ज़ी, है ना, शामिल नहीं होना चाहिए। सरासर अल्लाह ताला की मर्ज़ी, सरासर अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी। तो फिर फ़ायदा क्या होगा कि जब इंसान कबाइर से अपने आप को बचाएगा, बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाएगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, कि हम तुमसे तुम्हारे सय्यात झाड़ देंगे, तुम्हारे गुनाह तुमसे झाड़ देंगे और हम तुम्हें दाखिल करेंगे बाइज़्ज़त दाखिल होने की जगह। तो कबाइर से इज्तिनाब ये क्या है ये? छोटे गुनाहों का कफ़ारा कह लीजिए, छोटे गुनाहों कफ़ारा असल में किसे कहते हैं? कफ़ारा, कफ़्फ़रा युकफ़्फ़िरु तकफ़ीर, है ना? इसकी ये कफ़रा युकफ़्फ़िरु के मीनिंग हमने पढ़े थे ना कि झाड़ देना गुनाहों को। हुँ, तो कफ़ारा इससे क्या होता है? गुनाह झड़ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था कि वुज़ू करने से इंसान के जो गुनाह झड़ते हैं, है ना? हमने पढ़ा कि नमाज़ें जो हैं ये इंसान के गुनाहों का कफ़ारा है ना? इससे इंसान के गुनाह झड़ते हैं, माफ़ होते हैं। 5 वक़्त नमाज़ें, रमज़ान के रोज़े, इससे भी क्या होते हैं? गुनाह झड़ते हैं। है ना? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई कि उम्रा है, हज है, ज़कात है, सदका है और खैरात है ना? ये तमाम चीज़ें क्या हैं? गुनाहों का कफ़ारा है ना? इन तमाम नेकियों से इंसान के गुनाह क्या होते हैं? झड़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि इंसान को कोई तकलीफ पहुँचती है, कोई काँटा चुभता है ना? तो उसके गुनाह उससे झड़ते हैं, बुखार आता है तो उससे उसके गुनाह झड़ते हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है ये। सय्यात कहते हैं छोटे गुनाहों को, बुराई, सू। तो ये तो अल्लाह ताला कह रहा है कि नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुमसे तुम्हारी सय्यात झाड़ देंगे, तुम्हारे गुनाह हम तुमसे झाड़ देंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए चलें, कबाइर से अपने आप को बचाते हुए चलें, इज्तिनाब करते हुए चलें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला हमसे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देगा। छोटी-छोटी जो हमसे ख़ताएँ हो जाती हैं, छोटी-छोटी जो हमसे कोताहियाँ और लग़ज़िशें हो जाती हैं, अल्लाह ताला उसे झाड़ देगा। और मज़ीद ये कि वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तुम्हें क्या करेंगे? बाइज़्ज़त दाखिल होने की जगह दाखिल करेंगे। बाइज़्ज़त दाखिल होने की जगह कौन-सी है? हम सब जानते हैं ना कि सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त जगह कौन-सी है? जन्नत। हुँ। तो अल्लाह ताला जन्नत का वादा कर रहे हैं कि कबाइर से अपने आप को बचा लो तो हमने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है। तो जन्नत क्या है ये? करीमा, एक बाइज़्ज़त जगह है। वहाँ जाकर इंसान को इकराम मिलेगा, इज़्ज़त व तौक़ीर होगी वहाँ पर, इंसान की तकरीम होगी, इंसान वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ होगा, बाइज़्ज़त होगा और हर इंसान होगा। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में जैसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर बड़े-बड़े लोगों की बड़ी आवभगत होती है, बड़े ख़ातिर मज़ारात की जाती है ना? उन्हें बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और यानी कुछ वीआईपी किस्म के लोग होते हैं। लेकिन जन्नत में क्या होगा कि हर इंसान वीआईपी होगा, हर इंसान की वहाँ पर इज़्ज़त होगी। हर इंसान का वहाँ पर इस्तकबाल होगा। हुँ। हर इंसान के वहाँ पर क्या होगी? तकरीम होगी, इकराम होगा। तो जन्नत जो है वो क्या है? वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर जाकर इंसान को इज़्ज़त नसीब होना है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या करे? इज़्ज़त की ज़िंदगी, है ना? हमें अता करे और जन्नत की ज़िंदगी जो है वो क्या है? इज़्ज़त की ज़िंदगी है।
तो बहरहाल वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, हम तुम्हें क्या करेंगे? बाइज्जत दाखिल होने की जगह दाखिल करेंगे। आगे है वला ततमन्नौ। असल में ये आयत जो यहाँ पर आगे है ना का कबाइर से अपने आप को बचाना, तो इसमें जैसे मैंने कहा था ना कि कत्ल करना ये गुनाह कबीरा में से है, तो इसमें तख्तुलु अनफुसकुम भी आ गया, इसमें खुदकशी करना भी आ गया कि ये भी क्या है कबाइर में से, इससे भी क्या करना है? अपने आप को बचाना है। और बातिल तरीके से माल खाना है ना, इसकी बहुत सारी शक्लें जैसे मैंने आपको बताई कि सूद है, रिश्वत है, तमाम चीजें क्या है? हराम है, कबाइर है ना? तो इससे क्या करना? अपने आप को बचाना। अब आगे की आगे की आयत है, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, और तुम तमन्ना ना करो उस चीज की जो अल्लाह ने फजीलत दी है तुम में से बास को बास पर। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, आदमी के लिए मर्द के लिए वही है जो वो कमाए, यानी मर्द के लिए हिस्सा है उसमें से जो उसने कमाया। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। वसलुल्लाह मिन फज़लिही, और अल्लाह से उसका फजल मांगो। इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। अब ये बात यहाँ पर क्यों आ गई कि उस चीज की तमन्ना ना करो, उस चीज की ख्वाहिश और आरजू ना करो जिसकी अल्लाह ताला ने जो फजीलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम में से बास को बास पर। हम्म, ये आयत एक तो ये कि हम थोड़ा सा इसका लिंक देख लेते हैं, पिछली आयत से इसका लिंक क्या है। यानी इंसान के अंदर जो बातिल माल कमाने की जो एक होड़ है, कहना चाहिए एक लालच, एक हिर्स और तमा पाया जाता है, वो क्यों? है ना? एक तो ये कि इस वजह से कि आज का इंसान क्या कर रहा है? कंपटीशन कर रहा है। कि उसके पास इतना माल है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास भी इतना ही माल होना चाहिए, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। गुनाह कबीरा करना पड़े, रिश्वत, सूद और न जाने क्या-क्या जितनी शक्लें हो सकती हैं, है ना? चोरी, डकैती, नाजायज़ माली तमाम चीज़ें इंसान कर गुज़रता है। किसी के पास क्या है? बहुत अच्छा बंगला, है ना? गाड़ी और बहुत जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं दुनियावी, तमाम मादी चीज़ें, है ना? इंसान उन तमाम चीज़ों को देखे, दूसरे की ज़िंदगी को देखे कि उसके पास इतना माल है, इतनी दौलत है, ये है और वो है। और फिर इंसान सोचे कि ये इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और मेरे पास भी होना चाहिए था, और मैं क्यों नहीं कर सकता, और मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। और फिर इंसान उसके लिए सब कुछ कर गुजरे, जायज और नाजायज की तमीज खो बैठे, हराम और हलाल की तमीज खो बैठे, है ना? और फिर इंसान उस चीज को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दे, सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते बस उसके ऊपर एक ही धुन सवार हो कि मुझे माल कमाना है, मुझे दौलत कमाना है, मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। उसी के लिए सब कुछ क्या कर दे, वो अपना दीन भी बेच दे, अपना ईमान भी बेच दे, सब कुछ उसमें लगा दे, अपनी नमाज़ें खत्म करे, अपने रोज़ा खत्म करे, सब कुछ खत्म करके बंदों के हुकूक खत्म करे, ना माँ-बाप का हक, ना बीवी-बच्चों का, कुछ नहीं याद आए, बस उसे बस माल कमाने की धुन सवार हो जाए उसके ऊपर, है ना? तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो मना क्या जा रहा है कि वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, कि तुम तमन्ना ना करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने फ़ज़ीलत दी है, तुम में से बाज़ को बाज़ पर। तो ये है कि देखिए दुनिया में अल्लाह ताला ने जो, जैसे अभी ये बात हमारे सामने आई थी कि दुनिया में हर इंसान की आजमाइश हो रही है, हर इंसान को आजमाया जा रहा है। किसी को ज्यादा माल देकर आजमाया जा रहा है, किसी को कम माल देकर आजमाया जा रहा है, किसी को खूबसूरती के जरिए आजमाया जा रहा है, किसी को बदसूरती के जरिए, है ना? तो अमीर और गरीब, छोटे बड़े, और ये मालदार, ये सब खूबसूरत बदसूरत, है ना? यहाँ पर क्या हो रही है? हर इंसान की आजमाइश हो रही है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में किसी इंसान को ज्यादा दिया है ना? असल में फजल जो कहते हैं ना, किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा चीज को कहते हैं, जायद चीज को कहते हैं। तो अल्लाह ताला दुनिया में किसी को क्या है? ज्यादा दिया है, एक्स्ट्रा दिया है, फजल, है ना? अल्लाह ताला ने उसमें नवाजा है। और किसी को क्या है? कम दिया है। तो किसी को कम देना ये अल्लाह ताला की नाराजगी नहीं है, या किसी को ज्यादा देना इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह ताला खुश है। अल्लाह ताला इस दुनिया में बदला नहीं दे रहा है लोगों की नेकियों का, लोगों की अच्छाइयों का, लोगों की भलाइयों का। अल्लाह ताला ने बदले के लिए आखिरत का दिन रखा है, वहां जाकर बदला मिलना है। हम ये क्यों सोच लेते हैं दुनिया में कि हमारे पास अगर कम है तो हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज है, या किसी इंसान के पास ज्यादा है तो हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह ताला उससे बहुत खुश है, या हमारे पास ज्यादा है तो हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश है। हम ये क्यों सोचते हैं कि दुनिया में हमें हमारे नेकियों का बदला मिल रहा है? हम कहते भी हैं कि पता नहीं हमारी कौन सी नेकी काम आ गई, पता नहीं हमारे किस नेकी के बदले में हमें ये सब कुछ मिल रहा है ना? तो ये है कि ये दुनिया में अगर किसी को कुछ भी मिल रहा है, ये सरासर अल्लाह ताला का फज़्ल है।
ہماری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہے نا؟ کہ ہمیں کچھ ملے۔ تو یہی سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے نا؟ جو کچھ بھی مل رہا ہے انسان کو، چاہے وہ اس دنیا میں مل رہا ہے یا آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا، وہ بھی سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہوگا، وہ بھی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ کیا ہوگا، سراسر اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کے رحم کی بنا پر جائیں گے۔ تو صحابہ نے سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں میں بھی، ہے نا؟ جنت میں جب داخل ہوں گے جبکہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے رحم و کرم کی بنا پر نا جنت میں انسان کا داخلہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی چیز زیادہ دی ہے، ایکسٹرا دی ہے، مزید دی ہے، تو تم کیا کرو، اس کی تمنا نہ کرو کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی ہو، میرے پاس کیوں نہیں ہے اور مجھے بھی چاہیے یہ، تو دوسرے کی چیز کو دیکھ کر لالچ کرنا، حرص کرنا، طمع کرنا، خواہش کرنا، یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے پاس بہت اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی ہو۔ کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کے پاس مال و دولت دیکھ کر، کسی کے پاس اور کوئی، کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کی گاڑی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھ کر، کسی کے ڈریسز دیکھ کر، ہے نا؟ خواہش ہوتی ہے کہ کیا ہمارے پاس بھی کاش ایسا ہی ہوتا۔ تو منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو کوئی چیز زیادہ دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ اصل میں یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ کہ دوسرے کو دیکھ کر لالچ کرنا، حرص و طمع اور خواہش کرنا، اور پھر اس کے لیے کیا کرنا، تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا اس کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر کیا کرنا، پھر وہ چیز نہ ملے تو پھر یا تو انسان خودکشی کر لے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے، یا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے انسان۔ جیسے مان لیجیے کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کسی انسان کو دولت میں کچھ اس کے پاس کمی ہے، غریبی ہے، تھوڑی تنگ دستی ہے۔ اب انسان مالدار کو دیکھ کر پھر کیا کرے کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اب انسان کیا کرنا شروع کر دے، حرام طریقے سے مال کمانا شروع کر دے، چوری ڈکیتی کے ذریعے شروع کر دے نا، یہ کسی ناجائز سود و رشوت کے ذریعے مال کمانا شروع کر دے۔ تو یہ کیا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر اس کے دل میں خواہش ہوئی اور پھر اس نے کیا کیا، گناہ کر بیٹھا اور اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی کی طرف کیا ہوا، لے گیا، وہ اپنے آپ کو اس نے ہلاک و برباد کر دیا، ناکام ہو گیا تو سوسائڈ کر لی، ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں کیا کر رہی ہیں، انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقسیم میں حکمت کار فرما ہوتی ہے نا، کہ کس انسان کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے دنیا میں وہ اندھا دھند نہیں ہے، اندھا دھند تقسیم نہیں ہے کہ اندھا دھند نہیں بانٹا جا رہا ہے کسی کو۔ کسی کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کے علم کی بنا پر دنیا میں سارے تقسیم کار فرما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر راضی برضا رہے، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جتنا دیا ہے، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے، اگر کچھ کم ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے یہ، نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں پر، اس کی حکمتوں پر کیا رہیں، راضی برضا رہیں، خوش رہیں اور دوسرے کو دیکھ کر تمنا نہ کرے۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ مثالیں دوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عورت بنایا ہے نا، اور اگر ہم یہ خواہش کریں مردوں کو دیکھ کر کہ ارے مردوں کے پاس تو اتنے حقوق ہیں، وہ تو آرام سے جب چاہیں گھر سے باہر جائیں، ادھر سے ادھر جائیں، گھومیں پھریں آزادانہ طریقے سے، مال کمائیں، ہے نا، جاب کریں، بزنس کریں، گاڑی چلائیں، جو کچھ بھی ہم ان کے زندگی میں دیکھتے ہیں، تو ہم اتنا امپریس نہ ہو، اتنا متاثر نہ ہو، یہ خواہش نہ کر بیٹھیں کہ کاش ہم بھی ایک مرد ہوتے، آج ہم بھی یہ سارے کام کر رہے ہوتے جیسے مرد کر رہے ہیں، آزادانہ طریقے سے آج ہم گھوم پھر رہے ہوتے، ہے نا، اور ہمیں تو قید کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کی بات ہمارے ذہن میں آنے لگے تو منع کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم تمنا نہ کرو اس چیز کی جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ کاش ہم ایک مرد ہوتے اور مردوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو یہ سوچ انسان کو کیا کر رہی ہے، گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آج انسان نے یہی تو سوچا کہ ہم کیا مردوں سے کم ہیں، برابری ہونا چاہیے، مساوات مرد و زن کا نعرہ ہم نے لگایا، ہے نا، کہ عورت اور مرد میں برابری ہو،
और ऐसा क्यों हुआ कि मर्द को एक दर्जा ज़्यादा दिया गया औरत पर? ऐसा क्यों हुआ कि मर्द को औरतों पर क़व्वाम बनाया गया? ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, औरतों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती हो गई ये तो। हमने अल्लाह ताला की इस हुक्म की हिकमत को नहीं समझा। हमने अल्लाह ताला की इस हुक्म की मसलहत को नहीं समझा। हमने नहीं समझा कि अल्लाह ताला इंसान का खालिक है। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है इंसान की फितरत। अल्लाह ताला को मालूम था कि औरत कमज़ोर होती है, औरत जज़्बाती होती है, औरत को ज़रूरत है कि उसे कोई सपोर्ट करे, उसे कोई सहारा दे, है ना? अल्लाह ताला ने औरतों को घरों की शहज़ादियाँ और घरों की मलका बनाया, उसे कैद नहीं किया है घर के अंदर। मर्दों को उसका सरबराह बनाया, उसका नाज़िम और सरपरस्त बनाया। ना? तो ये इस पर अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी ब-रज़ा रहें, खुश हों अपने मकाम पर, अपने मनसब पर, है ना? और दूसरों की चीज़ को देखकर तमन्ना ना करें। अच्छा हुआ क्या कि जब औरत ने ये देखा कि मर्दों को तो ये फ़ज़ीलत हासिल है और ये भी हासिल है और ये चीज़ उसे मिली हुई है। औरत ने कहा कि हम इससे कम नहीं और हम भी सब कुछ कर सकते हैं। और औरतों ने क्या-क्या मर्दों से मुशाबिहत इख्तियार की। मर्दों की तरह ड्रेसेस पहनकर, मर्दों की तरह चाल-ढाल और मर्दों की तरह उसने काम करना शुरू किया, घरों से बाहर निकली वो। और जॉब और बिज़नेस और ये फैक्ट्री और ये मर्दों के साथ इख्तिलात हुआ उनका, है ना? मिल-जुल कर काम किया, जिसका नतीजा आज क्या हुआ, है ना? कि वो जो एक पूरी एक नज़्म है इसके ऊपर कि घर से बेघर हुई और औरत की फिर औरत रही। यानी इसके बावजूद भी कि उसने मर्दों की बराबरी अख्तियार करना चाही, लेकिन हुआ क्या कि सरासर उसे नुकसान का सामना करना पड़ा। उसे अज़ियत का सामना करना पड़ा, उसे तकलीफ का सामना करना पड़ा। यानी उसने मर्दों जैसे काम भी अंजाम दिए, मर्दों की तरह भी उसने ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले ली कि मैं जॉब भी कर सकती हूँ मैं, है ना? मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने तमाम घर का निज़ाम खुद चला सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी मर्द की। उसने ये नारा भी बुलंद किया जिसका नतीजा क्या हुआ कि औरत इतनी अज़ियत में आ गई, इतनी तकलीफ में आ गई कि पहले तो उसने क्या किया, घर से बाहर निकल कर मर्दों की तरह काम किए और फिर जब घर के अंदर दाखिल हुई, तो फिर उसे घर के अंदर आकर एक औरत की ज़िम्मेदारियाँ अदा करना पड़ी कि बच्चों की देखभाल और घर के काम और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो उसके ऊपर आयद होती हैं, है ना? हो सकता है कि शौहर की ज़िम्मेदारियाँ, ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ, इन तमाम कामों को भी उसने अंजाम दिया साथ-साथ, है ना? और फिर औरत इस कदर क्या हो गई परेशानी में चली गई, अज़ियत में चली गई, तकलीफ में चली गई कि उसके लिए कोई खुशी का कोई लम्हा, सुकून का, है ना? कि ऐसी औरतें जो जॉब भी कर रही हैं, जो घरों को देख रही हैं, वो तरस रही हैं इस बात के लिए कि हमें वो खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं, वो सुकून नहीं मिल पा रहा है ना? जो एक अच्छा एक ऐसी औरत को देखते हैं कि जहाँ पर क्या है मर्द लोग बाहर की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, है ना? और औरतें क्या कर रही हैं, घरों में राज कर रही हैं, सुकून की ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, है ना? अपने बच्चों के साथ और बहुत सारे कामों में वो तो वो एक जो अल्लाह ताला ने जो तक़सीम रखी है, अल्लाह ताला के जो तक़सीम में जो हिकमतें कार फ़रमा है ना? उसकी जो बरकतें हैं, वो सामने आते हैं। और जब हमने अल्लाह ताला की तक़सीम और अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला की जो हिकमत थी कह लीजिए या अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम था दुनिया का जो अल्लाह ताला ने बनाया था, जब हमने अल्लाह ताला के निज़ाम को तोड़ने की कोशिश की, है ना? और हमने हुदूद को फलांगने की कोशिश की, तो सरासर हमारा अपना ही नुकसान हुआ। हमने अपने आप को अज़ियत में डाला, अपने आप को तकलीफ में डाला, अपने आप को हमने सुकून से और अपने आप को महरूम कर दिया। हमने खुद अपने ऊपर क्या किया ऐसी-ऐसी तौक़ सलासिल, ऐसी-ऐसी बंदिशें, ऐसी-ऐसी अपने आप को ऐसे जकड़ लिया अपने आप को ऐसी तकलीफ़ों में कि आज हम खुद परेशान हैं कि ऐसा क्यों हमारे साथ है। फिर हम रोना रोते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अच्छा जब बाहर औरत गई और जब मर्दों से इख्तिलात हुआ, उनसे मिली-जुली, उनके साथ काम किया, तो ना सिर्फ़ ये कि उसने काम किया बल्कि उसको ऐसी बहुत सी अज़ियतों का सामना करना पड़ा। मर्द की हवस भरी निगाहों का सामना करना पड़ा, है ना? मर्द की लालची निगाहों का सामना करना पड़ा उसे। और फिर इस तरह की चीज़ें भी सामने आई कि मर्दों ने उसका जिनसी इस्तेहसाल भी किया, है ना? और इस तरह की भी चीज़ें सामने आती रहती हैं कि फिर मर्द औरत को जो है वहाँ के मर्दों को भी खुश करना पड़ता है, फिर घर आकर भी अपने घर के लोगों को खुश करना पड़ता है, तो किन-किन अज़ियतों से औरत गुज़रती है ना? तो इसलिए कभी ये ख्वाहिश नहीं करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने औरत क्यों बनाया, अल्लाह ताला ने हमें मर्द क्यों नहीं बनाया। हमें सामने से देखकर लगता है कि मर्द की ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, लेकिन जब मर्दों की ज़िंदगी को अगर हम करीब से देखें, अगर हम जानने की कोशिश करें, तो किस कदर अज़ियतों की ज़िंदगी गुज़ारते हैं वो, है ना? किस कदर परेशानियों का। हम तो घरों में आराम से बैठे होते हैं, हमें नहीं मालूम होता है कि मर्दों को बाहर किन-किन लोगों से सामना पेश आता है। कैसे कभी
कभी कोई बदतमीज, कोई जाहिल, कोई उजड़ किस्म का इंसान है ना, कैसे बदतमीजी करता है आकर। कभी किसी हमारे मर्दों को कभी बाहर के मर्दों से कभी फ्रॉड हो जाता है, धोखा दे जाते हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, न जाने क्या कुछ वो बर्दाश्त करते हैं। हमें लगता है सामने से देख कर कि हाँ वो बड़े खुश खुर्रम है बाहर, है ना, लेकिन वो किन तकलीफों से गुजर रहे हैं, किन अजियतों से गुजर रहे हैं, किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, कैसे कैसे वो हमारे लिए, और किसके लिए करते हैं अगर देखा जाए मर्दों को, अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लगाते हैं, सरासर वो घर की औरतों के लिए, है ना, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों के लिए वो क्या करते हैं, अज़ियतें बर्दाश्त करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, पसीना बहाते हैं, ना जाने क्या कुछ सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, अपने बॉस की, अपने बड़ों की, है ना, अपने मैनेजर की, ये तमाम कुछ सुनकर बर्दाश्त करके, है ना, वो हमें सुकून आफ़ियत पहुँचाते हैं। तो बहरहाल हमें क्या होना चाहिए, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी ब-रज़ा रहें, और जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाए हैं उसके निज़ाम को हम उसमें दखल-अंदाज़ी ना करें, है ना? अपनी मर्ज़ी ना चलाएँ। ये तो एक मिसाल है कि मर्द और औरत की मैंने मिसाल दी। वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने दूसरों को क्या दिया है कि कोई चीज़ ज़्यादा दी है, फ़ज़ीलत दी है, बढ़तरी दी है ना? और वो जो एक मुहावरा है ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपने ही चाल भूल गया, है ना? वही चीज़ें हमारे साथ पेश आती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों की तरह हो जाए। जिससे क्या होता है कि हम अपनी हैसियत भूल जाते हैं, अपना मकाम भूल जाते हैं, अपना मनसब भूल जाते हैं, हम अपनी शख्सियत को भूल जाते हैं। हमने अपने आप को भुला दिया बस दूसरों की तरह बनने के चक्कर में, ना दूसरों की जैसी चाल-ढाल, उनकी जैसी वज़ाक़ता, उनकी जैसी हमारा लिविंग स्टाइल, उनकी तरह करते-करते अपनी शख्सियत को हमने कहीं गुम कर दिया। अपने अंदरून को, अपने बातिन को और अपनी पर्सनैलिटी को हमने कहीं खो दिया है। हम अपने आप को पहचानें, है ना? अपने मकाम को, अपने मनसब को, अपनी हैसियत को पहचानें कि हम कौन हैं, क्या हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया है, हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे क्या फ़राइज़ हैं, क्या हुकूक हैं, इन तमाम चीज़ों को हम समझें, जानें और अदा करने की कोशिश करें। जिस मकाम पर भी हैं, उस मकाम पर हम खुश और खुर्रम रहें कि हाँ, ये हमारा मकाम बहुत बेहतरीन मकाम है, बहुत अच्छा मकाम है, बहुत बाइज़्ज़त मकाम है ना? तो जब हम खुद ही अपने इज़्ज़त के मकाम को हम गिराते हैं, है ना? तो खुद ही तो हमने क्या किया, इतना अल्लाह ताला ने हमें इतने बुलंद मकाम पर पहुँचाया था, औरत को, है ना? इज़्ज़त के मकाम पर पहुँचाया था, और हमने अपने आप को क्या कर देते हैं, पस्तियों में डाल देते हैं, पस्ती की तरफ लेकर जाते हैं, है ना? तो ये सरासर हमारा अपना ही कसूर है। तो बहरहाल, है ना? ये तो एक मिसाल है, वरना और बहुत सारी इस तरह की मिसालें इंशाअल्लाह आपके सामने आएँगी, अब चूँकि टाइम भी हमारा ख़त्म होता चला जा रहा है ना? तो इंशाअल्लाह इस आयत को हम कल पूरा करते हैं, और मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप भी इस तरह की कुछ मिसालें दें कि जिससे ये बात क्लियर हो, कि और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने दूसरों को फ़ज़ीलत दी है, दूसरों को कोई चीज़ ज़्यादा दी है, और हमारे पास वो कम है, तो हम उसकी ख़्वाहिश ना करें। आप लोग भी कुछ मिसालें सामने रखिए ताकि ये बात और क्लियर हो जाए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, कुछ कहना चाहेंगी आप लोग आज के सबक के ताल्लुक से? जी, नसरीन अस्सलाम साहिबा वालेकुम कुछ रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस आयत की रोशनी में एक सवाल करना चाहती हूँ। जी। हेलो मैम, जी, 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 मेरी बोलिए, आवाज़ आवाज़ आ रही है आप। जी, मैं ये मालूम करना चाहती हूँ, जैसे ठीक है, अल्लाह ताला ने दोनों की अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ दी, दोनों को अलग-अलग सब कुछ दिया और हमारे हुँ, दायरे भी अलग-अलग बना दिए। तो जो आज जो ये कोशिश हो रही है, औरत कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर भी है, तो क्या कुरान की नज़र में से हम ये कहें इस आयत को देखते हुए कि ये सारी कोशिशें औरत को नहीं करनी चाहिए? कौन-सी कोशिश है? मतलब जैसे औरत तो बहुत आगे निकल गई, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पायलट भी है और वो बहुत सारे काम बाहर हुँ, निकल के कर रही है, तो इसको हम किस नज़र से देखें? कुरान इस आयत की नज़र को देखते हुए मतलब तो हम उसको किस नज़र से देखें, क्या करें? क्या औरत ये सब गलत है कुरान की नज़र में बिल्कुल ये सब चीज़ें? जैसे कि हम बाहर जाके कोई जी, जी, और देखिए, काम करती हैं। जी, मैं समझ गई आपका सवाल। जी, देखिए, आप अपना पहले माइक बंद कीजिए, उसके बाद स्वीकार मेरी बात। जी। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम में मना नहीं किया गया है कि औरत कमाए, मतलब मेरे इस बात का मकसद ये नहीं था कि औरत जो है वो जॉब नहीं कर सकती, या औरत कोई मुलाज़मत नहीं कर सकती, या कोई कारोबार नहीं कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मिसाल हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल हज़रत खदीजा की मिसाल है कि कितना बड़ा उनकी तिजारत चलती थी, कितना बड़ा उनका कारोबार चलता था, है ना? और उन्होंने कैसे अपने माल के ज़रिए अल्लाह के रसूल की मदद की है ना? मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं था।
مقصد یہ تھا کہ اصل میں کہ اللہ کے نظام میں گڑبڑ پیدا کر دینا۔ جیسے مان لیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی ضرورت ہے نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، حالات بہت اچھے ہیں، لیکن ٹائم پاس کے لیے کر لینا یا پھر اس لیے کر لینا کہ حالات تو ٹھیک ہیں لیکن اور زیادہ سہولت کی زندگی اور زیادہ عیش و عشرت کی زندگی کرنے کی، جیسے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی عورتیں صرف مجبوری میں ہی جاب نہیں کر رہی ہیں بلکہ شوقیہ کر رہی ہیں، ہے نا، یا اور فیسلٹیز کے لیے کر رہی ہیں، ہے نا، یعنی ایک تو ہوتی ہے نیڈس کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے واقعی انسان کو، ہے نا، تو ایسے حالات میں یہ ہے کہ ہاں ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم کمائیں، ملازمت کریں، ہے نا، گھر کے حالات کو بہتر بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں، لیکن جبکہ سب کچھ ہو لیکن ہم پھر بھی ایک شوق میں یہ کام کریں گے تو یہ تھوڑی ایک غیر مناسب چیز ہے۔ جہاں تک بھی ہے دیکھیے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو جسم بنایا ہے، عورت کی جو ساخت ہے یا اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بنائی ہے جسمانی ساخت ہے نا، اس کے اندر ایک کشش رکھی ہے مردوں کے لیے، تو عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آتا بھی ہے نا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور مرد اور عورت آپس میں تنہا نہ ملیں اور شیطان بیچ میں ہوتے، تمام چیزیں ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال بہت مجبوری میں جہاں تک ہو سکے یہ قدم ہم اٹھا سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی یعنی جاب بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو چیز ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حدود میں رہتے ہوئے، ہے نا، حد میں رہتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے حد بنائی ہے عورت کی، ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کی حد کیا ہے، پردہ ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے، ڈھانکنا ہے، مردوں سے اختلاط نہ ہو، مردوں سے بات چیت، ان سے دوستی، ان سے ہاتھ ملانا، ہے نا، غیر ضروری باتیں کرنا، ان سے دوستی کرنا، تو یہ تمام چیزیں جب آ جاتی ہیں تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں نا۔ اگر عورت کو یہ معلوم ہے کہ ہاں کوئی سیفٹی جگہ ہے جہاں پر عورت جاب کر سکتی ہے، جہاں پر مردوں سے اختلاط نہیں ہو رہا ہے، مخلوط نہ ہو، کمبائن نہ ہو، جہاں پر مرد اور عورت، ہے نا، اس طرح کی کنڈیشن نہ ہو، تو کوشش ہمارے یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک بھی ہو سکے ہم اپنے آپ کو چھپا کر اور ڈھک کر اور ہم یہ تمام کام کریں، حد میں رہتے ہوئے کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب ہم حدود کو پھلانگ لیں گے، ہے نا، اور حدود کو کراس کر لیں گے تو یہ چیز غلط ہو جائے گی ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ تو اس طرح ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ خواہ ہم کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، ہے نا، کسی فیکٹری میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم اپنی حد میں رہیں، عورت کی جو حد ہے وہ اپنی حد میں رہے اور حد کو نہ پھلانگے، ہے نا، اور مجبوری میں اور جائے اس میں مجبوری میں وہ یہ قدم اٹھائے، لیکن جب سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی پھر اس طرح کے کام کرنا مجھے تو ایک غیر مناسب چیز لگتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ عورت کی جو ساخت ہے، عورت کی جو بناوٹ ہے نا، تو اس کو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کام کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کے کام ڈھونڈیں جس میں ہماری نمائش نہ ہو رہی ہو۔ ہم گھر میں رہ کر بہت سارے بزنس کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی جگہوں پہ بزنس کر سکتے ہیں جہاں پر صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں، مرد نہ ہوں، اس طرح کی ہماری کوشش ہو، اور بہت مجبوری میں اگر اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے جہاں مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑے تو پھر وہاں پر سارے حدود کو سامنے رکھنا ہوگا، ہے نا۔ بات سمجھ رہی ہیں آپ کی بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ آپ ذرا مجھے بتائیں۔ جی بالکل واضح ہوئی۔ ہاں مطلب آج کل ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ لڑکیوں کو شروع سے یہ ہم لوگ یہ چاہنے لگے ہیں ہمارے سماج میں کہ مطلب لڑکیوں کو کچھ کرنا ہی ہوگا ضرور، ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ضروری کچھ کرنا۔ اب یہ سوچ جو بن گئی ہے وہ میری نظر میں غلط ہے کہ مطلب ضروری ہے کہ آپ جیسے آپ نے بولا کہ ضرورت کے وقت ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے اتنی پابندی نہیں لگائی، تو اس کو اس بات کی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہم زبردستی لڑکیوں کو نہ کریں کہ ہاں ان کو تو کرنا ہی ہے جاب، ان کو شروع سے ایسے تیار کیا جا رہا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت چل گئی ہے۔ جی جی جی، صحیح بات ہے کہ پڑھائی کو ہم بچوں کے ذہن میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ پڑھو تاکہ تمہیں ایک اچھی جاب مل سکے، پڑھائی کرو تاکہ تم ایک اچھا بزنس کر سکو، یعنی پڑھائی کو ہم نے صرف ایک بزنس کا ذریعہ، ایک کاروبار کا ذریعہ اور ایک جاب کا ذریعہ سمجھ لیا۔ یعنی پڑھائی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ پڑھو تاکہ تم ایک اچھی انسان بنو، تمہارے اندر اچھی عادتیں آئیں، اچھا اخلاق ہو، ہے نا، ایک اچھے مسلمان بنو، یہ تمام چیزیں بچوں کو نہیں بتاتے، ان کا ذہن ہم شروع سے یہ ڈالتے ہیں کہ پڑھائی اس لیے کرو تاکہ تم پیسہ کما سکو، تاکہ تم گھر بنا لو، تاکہ تم یہ کر لو، تاکہ تم شادی کر لو، ہے نا، یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیز نہ بنائیں کہ تعلیم کا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، تعلیم ایک اچھا انسان بننے کے لیے ہم ایک تعلیم حاصل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی کو کچھ اور کہنا ہے؟
मोमिना बाजी, तो एक बात ये भी होती हैगी कि औरतें ज़्यादातर अपने रिश्तों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरों से, अपने दोस्तों से और लोगों से रिश्ता निभाती हैं, या इस चक्कर में अपने जॉब करती हैं कि मतलब मैं दूसरे लोगों से दोस्ती करूँ, अपने को कुछ नहीं समझा जाता, अपने घर वालों को। ये भी बहुत देखने में आता है आजकल। जी, रिश्तेदारियाँ जी, छोड़ी जाती हैं, दूसरों से रिश्तेदारियाँ निभाई जाती हैं। उसमें भी जी, कितनी गलत बातें हो जाती हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने ये। असल में सिला रहमी की बहुत अहमियत है, रिश्तेदारी की बहुत अहमियत है, पहले हम उन्हें फ़ौक़ियत दें और अपनों को, है ना, हमें ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है और अपनों के बीच में, और हम क्या करें, दोस्ती को अहमियत दें, दोस्ती के रिश्ते को, है ना, बहुत ज़्यादा। अ, तो ये है, देखिए सिला रहमी का अज्र और सवाब बहुत ज़्यादा है ना? तो दूसरों के साथ हम ताल्लुक़ रखें, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, है ना? जैसा भी आपने कहा कि एक औरत है ना? अब वो क्या कर रही है, दूसरों से तो बहुत दोस्तियाँ निभा रही है, अपनों को छोड़ रही है। तो देखिए हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ गलत होती है ना? दोस्ती में भी एक हद होना चाहिए। हद को क्रॉस ना करें कि हर वक़्त अपनी बस दोस्त से बातचीत चल रही है, कभी उससे फ़ोन पर बात, कभी उससे चैटिंग हो रही है, कभी उससे मुलाकातें हो रही हैं, है ना? उसमें हम इतना महव हो जाएँ कि अपनों को भुला बैठें, अपने घर की ज़िम्मेदारियों को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को भुला बैठे हैं, और बस दोस्ती के हक अदा करते रहें, दोस्ती के गुण गाते रहें, दोस्ती के अशआर, दोस्ती के इमेज और फ़ोटो स्टेटस, है ना? दोस्ती ही दोस्ती, तो हर चीज़ की एक हद होती है और हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है, वो नुकसानदेह होती है ना? तो इस सिलसिले में हमें हद में, असल में ये जब दोस्ती जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, ख़्वा वो लड़के और लड़की की दोस्ती हो या फिर लड़की-लड़की और लड़कों की आपस में दोस्ती है ना? जब ये चीज़ हद से बढ़ेगी तो नुकसान होगा। हुँ, तो इसमें भी हद रहना है। ये बात शायद इससे पहले भी हमारे सामने आ चुकी थी, है ना? कि मर्द का मर्द से ताल्लुक ना हो, औरत का औरत से ताल्लुक ना हो, हद से ज़्यादा, है ना? ये भी इंसान को गुनाह की तरफ लेकर जाती है, इससे भी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यही बात कहना चाह रही थी ना आप? जी, यही कहना चाह रही थी। और फिर लोग ये भी होता है ना कि अपना वक़्त गुज़ारने के लिए अपने घर में वक़्त नहीं देते और ये सोचते हैं मैं जॉब करूँ या कुछ भी इस तरह से, बहुत हुँ, सारी हुँ। बातें होती हैं। जी, 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 सही बात है। अपने अपनों से पीछा छुड़ाना होता है ना ये चीज़ तो। जी, हो सकता है, अब ये तो इंसान के नियत के ऊपर है, क्या है, वो क्यों जॉब कर रहा है। बहरहाल चलिए, अच्छा, और किसी को कुछ और कहना है? चलिए ठीक है, फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।